Good morning everyone. 11th Commerce, English Medium, Subject PA, now chapter number 6. The procedures of formations of company. Now there are two types of formations process. First is promotions and second is procedures to obtain certificate of incorporation. Now let's go on the first, promotions. Promotion means the idea to bring a company into the being and to make preparations for the same. The executor of idea of promotions of a company is called promoter. At this stage, following points are to be considered by promoter. In short, we can say is that the person who brings the idea for the company establishment in the futures, that person is known as promoter and the idea of that person is known as promotions. जो पर्सन आइडिया लेकर के आता है उसको हम प्रमोटर के नाम से जानते हैं और उसका जो कंपनी लॉन्च करने का आइडिया होता है दैट आइडिया इज़ नोन एज प्रमोशन. नॉट टू इन अ कंपनी एनी वन पर्सन गेट द हायर पोस्ट, दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन. यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा. नो फर्स्ट पॉइंट इन दिस प्रोसेस, idea of the promotions of a company. The idea of promotion arises in the mind of promoters. He considered to promote a company in order to implement a research or to place a new product in the market. Promotion is the brainchild of the promoter. It is a one type of idea. In future we wants to start any types of business or a company's formations. Whenever we have an idea in our mind, that is called promotions. और ये promotions की अगर बात की जाए, whenever takes place in the reality, then it's a work for nation and work for the people. But when it's in the mind, that is called brain child of the promoter. ये छोटा सा child होता है, लेकिन जब तक as per the companies act के तौर पर हम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तब तक ये स्टार्ट हो सकता नहीं है. सो इट इज़ बिकम एज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ द प्रमोटर. Second process is primary and detailed investigations. After having an idea of promotions of company, the promoter has to undertake business-oriented empirical scrutiny and the directions of implementation. Selections for business locations, profitability are to be evaluated. बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हम ओवरऑल उससे रिलेटेड सारे के सारे डिटेल निकालते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू लैंड, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज़, better place for exchange and for going to the market. प्लेस ऐसा होना चाहिए जिसके आसपास में आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो प्लस मार्केट अवेलेबल हो, जिसके कारण आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस कैसा होना चाहिए कम. सेकंड थिंग कि उसके आसपास में जितना भी हमें नीडिंग थिंग्स होती है जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस इजीली अवेलेबल होने चाहिए. सो दीज आर द आइडियाज़ एंड प्राइमरीज डिटेल इन्वेस्टिगेशंस फॉर द बिजनेस स्टार्टिंग. बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ये आपको एवेल्यूट करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है और फ्यूचर में मार्केट से हमें रिटर्न कितना मिलेगा. आफ्टर प्राइमरी टेस्ट अ डिटेल्ड एनालिटिकल्स एवोल्यूशंस इज एसेंशियल्स. Information about capital, raw material, demands, equipments, facilities of transport, etc. are to be located because these all the things related to companies' expenses and incomes. Whenever expenses are less and the income is higher, then we call they earns profit. But these are always lesser than the price of the market's goods. तो ही आपका ये पॉसिबल होगा, वरना तो होगा नहीं. नेक्स्ट आता है mobilizations of resources. Promoter has to enter into the contract to obtain land, raw material, machinery, services, etc. for the implementations of promotions. Whenever you want to implement your promotions and implement your idea, first things you want to a raw material, machinery, services and land. और ये सारी चीज़ें आपको गेट करने के लिए सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनको आपको परचेज़ करना पड़ेगा. सो जिस प्लेस पे भी ये अवेलेबल होती है और हमें जहाँ पर कंपनी अपनी स्टार्ट करनी होती है तो जहाँ से अवेलेबल होती है वहाँ से हमें ये अपने नेटिव प्लेस पे लेकर के आना पड़ेगा. सो मोबिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल अरेंजमेंट. It is to be considered from where and how to procure capital for procuring the equipments and assets. Newly established company raises a capital through shares. From issuing a shares in the market, they get the capital for arrangement of the equipments and assets of the company. तो
आपको फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, लैंड हो, लेबर हो या मशीनरीज हो, एवरीथिंग यू वांट्स टू परचेज फॉर स्टार्टिंग योर बिजनेस, दे ऑल द थिंग्स नीड अ फाइनेंस। सबको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले फाइनेंस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि हमें कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, कितने रेशियो में मिलेगा और किस तरीके से उसे बिजनेस के अंदर यूटिलाइज करना है। 3 थिंग्स, हाउ कैन वी गेट, फ्रॉम वेयर वी गेट, and what's the ratio of utilizations of finance in the company. Second process आती है procedures to obtain certificate of incorporation for the starting the business. Certificate of incorporation is to be a certificate will be obtained from the registrar of companies for inceptions of companies. Following documents are to be prepared and submitted before the registrar of companies to obtain this certificate. If you want to get a certificate of incorporation for starting your business, you have to follow certain types of process, and after that, whenever you complete the process, then you will last get the certificate of incorporations for the starting your business. Now first process is memorandum of associations. पहले भी आपको बताया हुआ है, memorandum of association, it is a constitution of the company. Every types of work, every types of activities regarding from and related to the memorandum of associations. It is the basic documents and constitution of a company on which building of a company is constructed. Provisions of following clauses are compulsory in the memorandum of association. अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। उसमें कुछ क्लोजेस हैं जो कंपलसरी है एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड एज़ पर द कंपनीज एक्ट 1956। नाउ द फर्स्ट क्लोज इज नेम क्लोज। अ पब्लिक कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी बाय द शेयर्स हैज़ टू इंसर्ट द वर्ड लिमिटेड, एंड अ प्राइवेट कंपनी विद द लिमिटेड लाइबिलिटी बाय शेयर्स हैज़ टू इंसर्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड. When both the types of companies have a limited liability by their share capitals, they have to obtain at the end of the name of limited word. चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, लेकिन दोनों ही कंपनी की जब लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है विद द शेयर कैपिटल्स, तो दोनों कंपनी को अपने नेम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा. पब्लिक कंपनी होगी तो ओनली फॉर लिमिटेड वर्ड आएगा, बट अगर प्राइवेट कंपनी होगी दैट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स अ नेम. Company cannot adopt a name which resembles and that of other company registered in India or which is detrimental to national interest. अगर किसी नाम की कंपनी पहले से होती है तो उस नाम की कंपनी हम फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. नेम ऐसा होना चाहिए जिससे नेशन को, नेशन के पीपल्स को या फ्यूचर को कोई प्रॉब्लम ना हो. सेकेंड क्लोज आती है एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोजेस. कंपनी हैज़ टू मेंशन द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस सो द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड पब्लिक कैन करस्पॉन्डेंस विद द कंपनी एंड जुरिडिक्शंस ऑफ कोर्ट कैन बी फिक्स्ड. अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता है, नॉट फॉर ब्रांच, हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का हेडक्वार्टर है उसका एड्रेस रजिस्टर्ड होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस के पास. इन फ्यूचर में जस्टिस के लिए आपको अगर कोई भी काम के लिए अप्लाई करना हो, कोर्ट के अंदर कोई केस आपको शो करना हो, देन द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इज नोटिस्ड एंड नीडेड. थर्ड आती है ऑब्जेक्ट क्लोज. इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस फॉर व्हाट objective and what type of business is conducted by the company is stated in this clause, and the company cannot perform activity except for the goal for which the company is established. कंपनी जिस गोल के लिए स्टार्ट की गई है उस गोल को छोड़ करके आप दूसरा गोल स्टार्ट कर सकते हैं नहीं. दैट्स वाई इन दिस क्लोज 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आर नॉमिनेटेड. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सब्सिडरी. जो आपका मेन गोल है द नेम इज़ प्राइमरी, और जो आपका सेकेंड गोल होता है उसको हम सब्सिडरी गोल के नाम से जानते हैं. तो सबसे पहले आपको प्राइमरी गोल्स फुलफ़िल करना है, उसके बाद ही सेकेंड गोल आप फुलफ़िल कर सकते हैं. और जो गोल्स आपके यहाँ पर बताए गए हैं उसके अलावा आप कोई दूसरा गोल्स यहाँ पर नोटिफाइड नहीं कर सकते हैं या फिर तो उससे रिलेटेड कोई भी वर्क कर सकते नहीं है. नेक्स्ट क्लोज आती है लाइबिलिटीज क्लोज. The liability of the member is limited, unlimited or limited by guarantee
इज इंडिकेटेड इन दिस टाइप्स ऑफ क्लोज। इस क्लोज के अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी बताई जाती है कि वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है या गारंटी से लिमिटेड है। सो इन द केस ऑफ 1 person कंपनी whose name will be enter as a second person, मैंने आपको बताया था कि अगर 1 person की कंपनी में जिस पर्सन के नाम से कंपनी स्टार्ट हुई है उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर सेकंड नेम हमारे पास होना चाहिए जो उसके बदले में कंपनी स्टार्ट कर सके या कंपनी को रन कर सके। सो सेकंड पर्सन इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेबिलिटी ऑफ डूइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ओरिजिनल पर्सनस। उसके बाद नेक्स्ट क्लोज आती है कैपिटल क्लोज। Authorized capital of the company and its a division among the shares of the fixed value is stated. The fractional divisions of the capitals and all the types of capitals, working or a fixed capital, are situated in the capitals clause. The last point of the memorandum of association is associations clause. Minimum 7 members in a public company and minimum 2 members in a private company. ये हम कंपनीज के बारे में पहले ही देख चुके हैं। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए 2। हाउ टू गिव अ स्टेटमेंट विथ देयर सिग्नेचर स्टेटिंग दैट दे डिज़ायर्स टू स्टैब्लिश अ कंपनी, मतलब वो कंपनी खोलना चाहते हैं ऐसा वो डिज़ायर्स अपना नोटिफाइड कर रहे हैं या दे रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज़ द एसोसिएशंस क्लोज, जहाँ पर एटलीस्ट 7 मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी एंड एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन द प्राइवेट कंपनीज के अंदर नॉमिनेट होते हैं, उनके सिग्नेचर्स के साथ उनका स्टेटमेंट लिया जाता है। इन फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अराइजेस होती है तो सबसे पहले इन्हीं पर्सन से स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 7 क्लोज हुई, इनको बेटर तरीके से करना है। हैव यू एनी क्वेश्चंस देन आस्क। थैंक यू।